We'd like to request to switch on your camera if possible, sir. Welcome, sir. Good morning. Good morning. I hope my voice is clear. Yes, children. Please give a resounding round of applause to Dr. Mohit Dayal Gupta once again. Really, it's a great privilege for us to have you here, sir. Though virtually, but definitely we are all willing to be connected with you. I'm going to read your prestigious biodata in front of students. Dr. Mohit Dayal Gupta, born in 1974 in Delhi, is an intervention cardiologist by profession and is currently working as a professor of cardiology in GB Pant Hospital of Government of National Capital of Delhi. He is also the cardiologist in Parliament Health Annex for honorable members of the Parliament. Great achievement, sir. Dr. Gupta completed his graduation in medicine from University College of Medical Science in Delhi and went to attain the post-graduation in super specialization degrees in medicine from Maulana Azad Medical College, Delhi, one of the prestigious institutions of India. During his medical career, Dr. Gupta has a unique distinction of getting more than 18 gold medals and 5 silver medals. Definitely your sweat, blood, and perspiration. Dr. Mohit Gupta has been nominated as Fellow of the American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, the Cardiological Society of India, and the Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. Dr. Mohit Gupta is the principal investigator of many landmark research trials being conducted globally in the field of cardiology, investigating the role of genes in causing hypertension, heart attacks in young population, impact of COVID-19 on heart health, etc. Dr. Gupta is using artificial intelligence in conducting research and has also been instrumental in initiating research on investigating the adjunctive role of meditation in coronary heart disease. Both meditation and artificial intelligence, yes, that's your children. He has more than 150 publications to his credit. For his distinguished research in the field of cardiology, Dr. Gupta has received a number of national and state level awards, including the prestigious National Best Innovation Award in Cardiology for the year 2021, an eminent teacher award by Delhi Medical Association in 2022, Excellence in Cardiology Award in 2018, Mission Soyuz Young Scientist of the Year Award in 2019, Kelvin Audition Award of the Association of Physicians of India in 2019, Delhi Medical Association Excellence Award in 2020, and DP Basu Memorial Award for the Young Scientist of the Year 2010. Big round of applause, please. Dr. Gupta was recently invited by TEDx to speak on creating a conscious future. He is a renowned motivational speaker with numerous symposia and sessions to his credit in the institutions and universities of repute like Oxford, Cambridge, IIT, IIM, Parliament of India. He perfectly blends ancient wisdom with contemporary thinking and amalgamates science and spirituality in a session. He has been associated with Brahma Kumari's World Spiritual University from his childhood and practices Raj Yoga meditation daily. Dr. Gupta practices Raj Yoga meditation daily and has authored many articles and opinion columns in newspapers and has appeared in various TV shows. Thank you, sir, for giving us the opportunity to speak your life, actually the medical life which you have achieved. Here, the children from classes 9 to 12 sitting before you, the connection between you and children directly. Thank you, and I invite you wholeheartedly to this podium. Thank you. Welcome. Okay. Good morning. Good morning. Good morning to all little angels. 10वीं 11वीं 12वीं मुझे भी अपना पुराना टाइम ध्यान में आ गया। ओम शांति। आप सबको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल।
दोस्तों, कभी-कभी मेरे मन में कुछ बातें, कुछ ख़्याल आते हैं और आपसे आज मैं वही ख़्याल रखूँगा कि कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी और नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। तो दोस्तों, भागते-भागते जब 5th, 6th, 7th में थे तो बच्चों जैसी इनोसेंस रहती थी। 9th, 10th में आए तो प्रेशर बनना चालू हुआ, भाई क्या बनेगा? बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, लॉयर बनेगा। दिमाग में हलचल चालू हो जाती थी। रेस में लग जाते थे। और इसी तरह चलते-चलते हमने लाइफ को अपना रेस दोस्तों कहीं न कहीं बना डाला। और भागते-भागते आज हमारी लाइफ जो है ऐसे उस पर पहुँची है कि कहीं सब कुछ होते हुए भी जीवन के अंदर स्ट्रेस का आना, जीवन के अंदर तनाव का होना, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग दोस्तों बन चुका है। तो आज आप सबको मैं कोई लेक्चर नहीं देने आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट एजेंडा देने वाला हूँ। लेकिन आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर जो ये वंडरफुल अंदर इमोशंस हैं, ये मुस्कुराहट सदा ही ऐसी बनी रहे। ये मुस्कुराहट सदा ही ऐसी खिलती रहे और सक्सेस भी आराम से आती रहे, इसके कुछ मंत्र मैं आपको दोस्तों देने आया हूँ। और इन सब बातों को सब बच्चे अपने साथ लेकर रखना। कुछ-कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना जो हम सबको मिलकर प्रैक्टिस करने हैं। और फिर जभी भी आपको मोहित अंकल से बात करनी हो, नंबर लेके जब मन हो कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया, आपके पास हमेशा उत्तर ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज सब मेरे साथ इस वंडरफुल यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं बताओ? हाँ या नहीं? यस, हाथ उठा के बताओ। जो तैयार हैं सभी चलेंगे? भई आधे हाथ उठ रहे हैं, आधे नहीं उठ रहे, ऐसे कैसे मज़ा आएगा, हाँ? तो सारे लोग अच्छा, हमारे डीएवी के सारे स्टूडेंट जो हैं सब इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एक बारी आपके ही जैसा एक यंग बच्चा बहुत मेहनत करता था। उसका मन था कि वो तीरंदाज बने और करते-करते वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया। ही बिकेम द मास्टर तीरंदाज, जो आर्चर था वो बन गया। लेकिन जैसे-जैसे वो बना, उसके मन में अभिमान आने लगा। उसको कहीं न कहीं अंदर से एक ईगो आने लगा। लोगों को हरा देता और उनका उपहास करता, उनका मज़ाक उड़ाता। तो एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही अभिमान है, तो क्यों नहीं तुम इस गाँव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उसे जाकर हरा कर दिखाओ। इफ यू आर सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ, उसको जाकर हरा कर दिखाओ। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। बच्चों वो एक बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसे बोला कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो उसने कहा बेटा मुझे हराकर क्या करोगे? मैं तो बहुत हूँ। उसने कहा लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊँगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊँगा, नंबर 1 कहलाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है तो तैयार है। तो स्कूल खुले मैदान में आ गए। उस लड़के ने अपना तीर निकाला और निकाल कर एक्यूरेट एक के बाद एक निशाने पर लगा दिया और बिल्कुल सही पहुँचे। और मुस्कुराते हुए टेढ़ी नज़र से तिरछे मुँह से बोला बुजुर्ग व्यक्ति से आप ऐसा कर सकते हो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से 2 तीर निकाले और एक के बाद एक निशाने पर छोड़ दिए और वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ, आई एम द बेस्ट। तो वो उसको गाँव के कोने में ले गए और वहाँ पर एक बड़ा-बड़ा बहुत बड़े पहाड़ थे, बहुत बड़ी खाई थी और उस पर एक पतला-सा झूलता हुआ पगडंडी सा रास्ता बना था। उस पर वो चलने लगे, वो झूल रहा था। लड़के के माथे पर पसीने की भई तुम तीरंदाज़ी की बात हुई थी, ये कहाँ ले आए? लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ। जहाँ पर पहुँचे 2 पहाड़ों के ऊपर आकर खड़े हो गए, तो बुजुर्ग ने एक तीर निकाला और एक्यूरेट निकाल कर 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर निशाना साध दिया और लड़के से कहा बेटा ये पहला चरण है, करके दिखाओ। लड़के के माथे पर पसीने, हाथ परेशान, पसीना ही पसीना, लग रहा है इधर गिरूँ, उधर गिरूँ। उसने जैसे-तैसे अपना तीर निकाला, निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की, पर छोड़ा तो वो तीर कहीं पर नहीं आस-पास पहुँचा, वो खाई के अंदर विलीन हो गया। उसको मालूम था कि वो हार चुका है। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला कि मुझे क्षमा करना कि मैं तो हार गया। आप हो विश्व के बेस्ट, यू आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया। तो ध्यान से सुनो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा। उसने कहा बेटा नहीं, तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं। इसलिए इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड बेस्ट इन योर लाइफ,
सबसे पहले तुम्हें अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र दोस्तों बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना कि अगर एक अच्छा नाविक है और वो अच्छा नाविक केवल अपने घर में ही बैठा रहे या एक छोटे से तालाब के अंदर ही नाव चलाता रहे, दोस्तों उससे वो स्किलफुल नहीं बनेगा। लेकिन एक तूफान के अंदर नाव को चलाना वही हमको स्किलफुल और पावरफुल सेलर दोस्तों बनाता है। और यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी। आपका जीवन भी जब आप बाहर जाओगे 11 10 12 करके अलग अलग प्रकार की ब्रांचेज होंगी दोस्तों। कहीं ये होगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो लोग अलग अलग प्रकार का प्रेशर डालेंगे, परिस्थितियां डालेंगी, प्रोफेशनल प्रेशर आएगा। लेकिन उस समय अपने मन को पावरफुल बनाना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के चलते हुए, आज इस याद में चलते हुए दोस्तों हमने लाइफ में क्या कर लिया? आज हमने अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड की तरह बना दिया है। अब आप भी बैठे हो, मुझे एक बात बताओ, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि कोई भी चीज़ इमरजेंसी पे चलती है, तो क्या वो लंबी चलेगी या कम चलेगी? हमेशा कम चलेगी। नेचुरली उसकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी। आज लाइफ में भी हमने इतना प्रेशर रखते हुए अपने आप को इमरजेंसी मोड में बनाया है। और 2 शब्द हमारी लाइफ में जो सदा के लिए हमसे एसोसिएट हो गए हैं। जानते हो ये 2 शब्द कौन से? ये 2 शब्द हैं, आई एम बिज़ी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, पढ़ना है, एग्ज़ाम है, अचीव करना है, आगे दौड़ना है, भागना है, ये करना है। पूरे दिन बस टारगेट लेकर अपनी लाइफ़ को ही हमने टारगेट बना दिया है, खुशी हमारी टारगेट पर चढ़ गई है और सब हमारी आनंद चली गई है। दोस्तों, ऐसी लाइफ़ बनाने का क्या फ़ायदा होगा? तो आज मैं आपको जो दूसरा मंत्र देने वाला हूँ और सब बच्चे मेरे साथ-साथ पीछे-पीछे बोलना। सब इसको नोट भी करना और पीछे-पीछे बोलना कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिज़ी नहीं हूँ, मैं बिज़ी नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी ईज़ी हूँ। देखो बिज़ी शब्द में क्या शब्द छुपा है? बी ईज़ी इन माय लाइफ, है ना? तो बी ईज़ी इनसाइड एंड ईज़ी बिज़ी आउटसाइड। तो अगर हमारा मन बहुत ईज़ी और कंफर्टेबल है, तो बाहर के चैलेंजेस हमारे लिए कभी भी मैटर दोस्तों नहीं करेंगे। देखो ना, बाहर की प्रेशर ऑफ सिचुएशन है। आप लोगों के ऊपर प्रेशर ऑफ सिचुएशन क्या होगी? आप लोगों के ऊपर प्रेशर ऑफ सिचुएशन होगी कि हमें पास होना है, हमें ये बनना है, हमारे टारगेट को हमें अचीव करना है। और जब भी कोई प्रेशर आता है, ये देखो ये हमको क्या देगा? ये हमको एक स्ट्रेस हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है। अब इस स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को तो कम नहीं करेंगे, वो तो नेचुरली हमको अचीव करना है और करके ही रहेंगे। लेकिन अपनी कोपिंग स्किल्स को, अपने इनर कैपेबिलिटीज़ को हमको बढ़ाना है। और यही मैसेजेस आज मैं आपको देने के लिए चालू हूँ। लेकिन दोस्तों, ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे कोपिंग स्किल्स को हमें बढ़ाना है, उसको हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। लेकिन इन कोपिंग स्किल्स को हमें अपने मन में, अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को पावरफुल बनाना है। ऐसे ही मेरी भी यात्रा आरंभ हुई दोस्तों जब मैं स्कूल में था। अच्छा स्टूडेंट था, बहुत मेहनत से पढ़ता था, खूब स्कूल में ब लोग होते थे। फिर मुझे एमबीबीएस करनी थी, डॉक्टरी पढ़नी थी। तो घर वाले कभी कहते कोई इंजीनियर बनो, लेकिन मेरा मन था मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी दोनों के एग्ज़ाम दिए। दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी हो गया, आईआईटी में भी हो गया, एमबीबीएस के अंदर भी सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने मेडिकल स्कूल ले लिया। लेकिन जो मेडिकल स्कूल मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। वो सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट जो मुझे चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन जब मैं डॉक्टर बनने जा रहा था तो फर्स्ट डे 16 जुलाई 1992 को मैंने अपने फादर को बड़े प्यार से बोला। मैंने कहा कि पापा, मैं एक बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, एक हार्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मुस्कुराते हुए अपने गले लगाया और गले लगाकर वो सवेरे 7 बजे का टाइम था, उन्होंने बोला कि बेटा एक अच्छे इंसान बनना, तो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट एक दिन ज़रूर बन जाओ। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का राज है। लाइफ में अगर हमारा मन, हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली पावरफुल है, तो जो भी, जैसा भी, जिस प्रकार से हम चाहें, वो हम बन सकते हैं। लेकिन हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ईज़ी लाइफ कोई भी नहीं होती दोस्त, ईज़ी लाइफ कोई भी नहीं होती। एक बारी एक मंदिर में 2 पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक पत्थर था तो ज़मीन पे लगा था और एक पत्थर था तो मूर्ति पे लगा हुआ था देवता की। तो मंदिर पे जो ज़मीन पे लगा हुआ पत्थर था, वो मूर्ति पे लगे हुए पत्थर से बोलता है, देखो भाई, हम दोनों की किस्मत देखो। हम दोनों एक ही खदान से आए हैं, एक ही बड़े पत्थर से आए हैं।
लेकिन आज मैं यहाँ पर, मेरी किस्मत है कि लोग मेरे ऊपर आके पाँव रखते हैं, और तुम्हारी किस्मत कैसी है कि तुम्हारे ऊपर लोग आके माला चढ़ाते हैं। ये भी अद्भुत है। दोनों हँसने लग गए। तो जो मूर्ति वाला पत्थर था, वो ज़मीन पे लगे हुए पत्थर से बोला कि तुम ठीक कहती हो बहन। लेकिन देखो, जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी तो मूर्तिकार था, शिल्पकार था, स्कल्पचर था। वो तुम्हारे ऊपर हथौड़े और छेनी से प्रहार कर रहा था, लेकिन तुमने टूटने से मना कर दिया। इसलिए उसने चुप होकर तुम्हें ज़मीन पे गाड़ दिया। लेकिन मैं उसके हथौड़े और छेने की मार को 1 साल तक लगातार सहन करती रही, और मेरा जो रूप था, वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में निकल कर आ गया। इसलिए आज लोग मेरी पूजा करते हैं और तुम्हारे ऊपर पाँव चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी क्या है? हमारे जीवन में भी ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो चैलेंजेज़ हैं, ये हमको गिराने के लिए नहीं आते। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम लोग, देखता हूँ मैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाएँगे, एंग्ज़ायटी में आ जाएँगे, अरे ये स्ट्रेस है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे! देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ। बड़ा-बड़ा लिख लो अपनी किताब में, अभी नोट कर लो, अपने मन में नोट कर लो। देयर आर नो फेलियर इन लाइफ। लाइफ में केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो सक्सेस होती है या लर्निंग्स होती हैं। हम कभी भी फेल नहीं होते। या तो हम सीखेंगे या हम सक्सेस को प्राप्त होंगे, और जब ये मंत्र हमने अपने जीवन में रख लिया, तो हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें अपने मन की स्थिति को पावरफुल बनाना पड़ेगा। देखो, लाइफ में ये बीच में आप बैठे हो, दिख रहा है आपको यहाँ बैठे हुए, फैमिली का प्रेशर है, सोशल फ्रेंड्स का प्रेशर है, नेचर का प्रेशर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का प्रेशर है, अचीव करना ये प्रेशर है, बस ये प्रेशर ही लेके हम चलते रहते हैं। लेकिन अगर बीच में हम अपने आप को पावरफुल बनाएँ, अपने आप को शक्तिशाली बनाएँ, तो हम कुछ भी जीवन में अचीव दोस्तों कर सकते हैं। इसलिए आपकी लाइफ जो है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ योर पर्सपेक्टिव। आपका दृष्टिकोण, आउटलुक किस प्रकार का है? दोस्तों, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार होता था। लोग बोलते थे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये डिफिकल्ट होगा। मेरे को लगा कि मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज चाहिए था, मुझे मिल गया यूसीएमएस। दोस्तों, अब मैं उसमें पढ़ता रहता था, लोग कहते थे भई ये सेकंड लेवल का कॉलेज है, और उस समय पे था भी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट नाम होता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि जब मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ जॉइन किया, वहाँ पे टीचर्स बहुत बढ़िया थे। मैंने शिद्दत से 5 साढ़े 5 साल दोस्तों मेहनत की। और लगातार पढ़ता था, मैं ये नहीं सोचता था कि मैं इस कॉलेज में हूँ, मैं उस कॉलेज में हूँ। तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से सवेरे और शाम में बहुत मेहनत करता था। और आपको जानकर हैरानी हो कि अपने दृष्टिकोण को, आउटलुक को मैंने इतना पावरफुल रखा कि तीनों प्रोफेशनल्स के अंदर, हमारे यहाँ 3 प्रोफेशनल्स होते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के तीनों कॉलेजेस में टॉप किया, 18 गोल्ड मेडल लिए, पुराने सारे 40 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, और बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमारे कॉलेज की रैंकिंग 1 हो गई। तो दोस्तों, कौन बनाता है? ये सारी सिचुएशन जो है, लाइफ जो है, इसको आप क्रिएट करते हो जब आप अपने आउटलुक को, अपने दृष्टिकोण को चेंज करते हो। इसलिए अपने आउटलुक, अपने दृष्टिकोण को सदा पावरफुल रखना, और मोस्ट पावरफुल मैसेज जो है, इट इज़ इनसाइड अस दैट मैटर्स। हमारे अंदर, हमारे मन में क्या है, वही हमारे जीवन की गति को डिसाइड करता है। देखो, ये पावर ऑफ ए बड़ी यूनिक पावर है दोस्तों। पावर ऑफ ए हर जगह हमारे साथ चलती है। इट इज़ ऑन डिस्प्ले एट वर्क, एट होम। पीपल अराउंड अस आर अफेक्टेड बाय इट। ना इसका कोई शेप है, ना कलर है, लेकिन इस पावर ऑफ ए का इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ्स का गेम आपको दिखाता हूँ। यदि ए को हम 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, सी को 3 कहते हैं, डी को 4 कहते हैं, ई को 5, और इस तरह जेड को 26 कहते हैं। तो यदि जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। लोग कहते हैं ना सक्सेस नहीं मिलती, देखो सक्सेस का मंत्र देखो आज। स्किल्स को अगर हम टोटल करें, एस को देखो 19, के को 11, आई को 9, एल 12, एल 12 एंड एस 19। इनको टोटल करते हैं तो हमें 82% सक्सेस मिल जाती है। बट आज आप सब कहोगे सर 82% सक्सेस से हमारा काम नहीं चलेगा। स्किल्स के साथ-साथ यदि हमको नॉलेज भी है, हमको ज्ञान भी है। नॉलेज को जब हम टोटल करते हैं तो हमको 96% सक्सेस मिल जाती है। 96% सक्सेस। बट इससे भी कहाँ काम चलेगा? एक व्यक्ति के पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, और उसके साथ-साथ वो हार्ड वर्क भी करता है, कठिन परिश्रम भी करता है, तो उसको 98% सक्सेस मिल जाती है। 98% सक्सेस। तो स्किल्स, नॉलेज और हार्ड वर्क को टोटल करते हैं तो 98%। लेकिन व्हाट इट मेक्स टू गेट 100%? 100% के लिए हमको पावर ऑफ ए चाहिए, और वो पावर ऑफ ए है पावर ऑफ एटीट्यूड। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? जब हम एटीट्यूड को टोटल करते हैं दोस्तों, हमारा जीवन के अंदर आउटलुक कैसा है, तो 100% सक्सेस हमको मिल जाती है।
अब हम में से कहेंगे हम तो हार्ड वर्क भी करते हैं, हम टैलेंटेड भी हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारा मन पॉजिटिव और पावरफुल नहीं रहता। ध्यान रखना, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पावरफुल मंत्र है वो है एटीट्यूड। फेलियर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लर्निंग्स होंगी, कभी कभी नीचे गिरना भी पड़ेगा दोस्तों, लेकिन गिरकर उठना ही यही हमारी लाइफ का मंत्र है। उसमें आगे बढ़ना यही हमारी लाइफ का मंत्र है और यही हमको श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है। तो आपका लाइफ जो है वो आपके थॉट्स का ही क्रिएशन है। आपका लाइफ आपके थॉट्स का ही क्रिएशन। आज 50 टू 70,000 थॉट्स हम लोग दोस्तों जनरेट करते हैं, लेकिन 90% हमारे विचार जानते हो बच्चों कैसे होते हैं? वो नेगेटिव और वेस्ट होते हैं। अब इन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को लेके ही अगर हम लोग चलते रहेंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी? आप सोचो, एक फैक्ट्री में से 50,000 में से 90% प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्ट और नेगेटिव हैं, तो वो तो यूजलेस फैक्ट्री हो गई, वेस्ट फैक्ट्री हो गई। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने थॉट्स को पावरफुल और पॉजिटिव बनाना, पावरफुल और पॉजिटिव बनाना। आपका एक-एक थॉट आपको बिहेवियर देता है। देखो ना, जिस दिन मूड अच्छा है, उस दिन बिहेवियर कैसा होगा? वंडरफुल होगा, पावरफुल होगा। और जिस दिन मेरा बिहेवियर पावरफुल है, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी पॉजिटिव और पावरफुल हों। इसलिए अपने संकल्पों को पावरफुल रखो। सोचना ही नहीं है कि मेरे को ये नहीं मिलेगा। आपका संकल्प ही आपके लाइफ को डिजाइन कर रहा है, उसको आगे क्रिएट कर रहा है। इसलिए आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव और पावरफुल होने चाहिए। आपके थॉट्स को रीडिजाइन करना यही आपका कार्य है, यही आपकी ड्यूटी है। तो एक-एक संकल्प को पॉजिटिव और पावरफुल तरीके से भरते चले जाओ और अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। ये केवल हमारा पॉजिटिव माइंडसेट ही है, सकारात्मक माइंडसेट ही है जो हमको नए और पॉजिटिव पावरफुल रिजल्ट्स देता है। इसलिए आज का मोस्ट पावरफुल मंत्र है पॉजिटिव एंड पावरफुल थिंकिंग। मेरा लाइफ जो है मेरे एटीट्यूड और मेरे थॉट्स की क्रिएशन है। जो आप सोच रहे हो वही आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। यदि आप बार-बार कहोगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो होगा ही नहीं। देखो, बहुत सुंदर मंत्र मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, जो बहुत पावरफुल मंत्र जो मैंने अपनी लाइफ में देखा वो यही था, व्हाटएवर यू वांट इट्स ऑन इट्स वे। लिखो इसको अपने पास, सदा के लिए लिख डालो अपने पास। जिंदगी में जो भी आप चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, जितना भी चाहते हो, वो आपकी तरफ ऑलरेडी आना चालू हो गया है। इट इज रीचिंग यू वेरी सून। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस प्रकार से जैसे अपने आप को देखना चाहते हो, जितना मेरी संकल्प शक्ति पॉजिटिव और पावरफुल होगी, उतना ईजी मेरे लिए हो जाएगा उस चीज को अचीव करना। दोस्तों, मैं आपको बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। 2001 में जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से पढ़कर आया तो मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी। कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, केवल 6 महीने थे और कभी भी ज़्यादातर टिपिकल तरीके से 1 साल के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर किसी का सिलेक्शन ज़्यादातर नहीं होता है और इसी प्रकार से मैंने अब पढ़ाई आरंभ की। 5 सीटें उस वक़्त पूरे इंडिया में दोस्तों, केवल 5 सीटें। तो मैंने अपनी मदर के पास गया और मदर को मैंने बोला कि भई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ लेकिन मुश्किल रहता है सिलेक्ट होना, लेकिन मैं तो 1 ही अटेम्प्ट दूँगा। मम्मी ने कहा क्यों मुश्किल है क्या? मैंने कहा आज तक कभी किसी का हुआ ही नहीं। मेरे टीचर्स मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे, मेरे सीनियर्स मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे। तो मेरी मदर ने कहा इधर आओ मेरे अपने पास, बुलाया। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो कहती हैं पहले 4 को तो हटाओ और 1 पर फोकस करो और केवल 1 को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। तो मैंने अपनी डेस्क के आगे लिख लिया, दिस वन सीट इज़ फॉर मी। मैंने प्यार से उसको लिख लिया और दिन और रात लेकर जी तोड़ मेहनत उसके पीछे चालू कर ली। 6 महीने मैंने पढ़ाई की और 2001 की बात थी दोस्तों, 16 जुलाई, 17 जुलाई नहीं 19 जुलाई से लेकर ये कार्य मैंने आरंभ किया और 9 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था। 9 फरवरी को एग्ज़ाम देकर जब मैं बाहर आया, तो बाहर आकर मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सबसे मैं डिस्कस करने चला गया, एमसीक्यू जैसे डिस्कस कर। मेरे से किसी ने बात ही नहीं की। उन्होंने बोला मोहित आप घर जाओ, शाम तक हम आपको की दे देंगे ताकि अगले साल आप बेटर एग्ज़ाम दे पाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं चुप होकर घर चला गया। आराम से बाल कटवाए, म्यूज़िक सुनता रहा और 15 दिन बाद रिज़ल्ट आया। मैंने सेकंड अटेम्प्ट देना ही था। 15 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, तो उसमें पूरे कंट्री के अंदर मेरा फर्स्ट रैंक था, मेरे 95% थे और जो सेकंड रैंक था वो 78% था। तो दोस्तों,
मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया वो सक्सेस मेरे पास नहीं आएगा, मैं अपने आप को देखता ही उसी प्रकार से था। और रोज अपने थॉट्स को पावरफुल तरीके से अलाइन करता था। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? जो आपको चाहिए वो मांगो, और मांगो ये कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे पास आनी चाहिए। अपने मांगी हुई चीज पर परफेक्ट तरीके से बिलीव रखो, उस पर विश्वास रखो कि ये चीज मेरे पास आ रही है, ये मेरे लिए सक्सेस मेरे पास है ही है। और उसके बाद आपका कार्य केवल एक हो जाता है, आपका माइंडसेट आपकी सक्सेस को अट्रैक्ट करता चला जाता है, अट्रैक्ट करता चला जाता है। तो दोस्तों, अपने पावरफुल मन को कभी भी किसी थॉट को डिस्टर्ब मत होने दो। लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर हमको नहीं मिलती है सक्सेस, उसका कारण है हमारे ही वीक थॉट्स, लोगों की बातों को सुनना, यही कारण है। और कभी-कभी अगर हमको एक चीज नहीं भी मिलती है, तो मेरा मंत्र हमेशा लाइफ में रहा है कि ऐसा ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा ही नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसा ही नहीं मुझे ये करना है। हमारे लिए जो भी परफेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली हम लोग अट्रैक्ट लाइफ में करते चले जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों पर बिलीव करना, तो आप देखोगे सक्सेस ऑटोमैटिकली आपकी तरफ आती चली जाएगी। मैंने कभी भी अपने मन में कोई संकल्प करके अपने मन को डिस्टर्ब कभी भी नहीं होने दिया। जिस चीज़ पर ठान ली, जिस चीज़ को मैंने सोच लिया, उस चीज़ को ऑटोमैटिकली मैं अपने जीवन में अचीव करता रहता हूँ। इसलिए अगर आज आपका मन, देखो आपके कितने दोस्त हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कभी-कभी कुछ और चीज़ों पे चले जाएँगे, परेशान होंगे, भाग जाएँगे, कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेंगे, क्या ज़रूरत? क्या करना? आप रोज़ अपने आप को बोलो, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। वेरी पावरफुल। अरे खुश जब हम जीवन में रहेंगे, हम अपने मन की प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। और अगर हम रोज सवेरे उठते ही पहला संकल्प लेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता तो नहीं इस बारी हो पाएगा, मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। और अंदर बैठा हुआ ब्रेन आपका पता है क्या काम करता है? ब्रेन केवल एक काम करता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो आप बोलोगे उसको तथास्तु करेगा, उसको अट्रैक्ट करके प्रोग्राम बना देगा। जो आप बोलोगे सक्सेसफुल नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है सक्सेसफुल नहीं है, लो प्रोग्राम कर दूंगा। दिस इज हाउ बायोलॉजी फंक्शन, दिस इज हाउ न्यूरोनल कनेक्शन आर फॉर्म। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत 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 पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। उसके अंदर कभी भी मुख और मन, केवल मुख से ही नहीं, मन से भी एक शब्द ना निकले कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। आप तो ये कहो सक्सेस तो मेरी निश्चित है, वो तो मुझे मिलनी ही है। द बेस्ट इन माई लाइफ विल ऑटोमेटिकली हैपन। इस प्रकार से जब मेरा थॉट प्रोसेस चलेगा, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली मेरे पास आती चली जाएगी। इसलिए आज के बाद लिख लो, जिंदगी में जो भी मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरी तरफ आ रहा है। आई एम गोइंग टू अचीव इट वेरी सून एंड वेरी कंफर्टेबल। थर्ड मंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थिंक प्रोएक्टिवली एंड पॉजिटिवली। दोस्तों, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी अचीव करना है, तो उसमें पॉजिटिव विचारों का बहुत 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 बड़ा रोल है। हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंडसेट को, हमारे थॉट प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और ये एक बुझे हुए बल्ब की तरह हो जाता है। लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग हमारे मन को इल्यूमिनेट करती है। इट्स लाइक अ पैराशूट। पैराशूट कब बेस्ट काम करेगा? जब वो खुला हुआ होता है। आज इसी प्रकार हमारे जीवन में नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को खराब करती चली जा रही है। दोस्तों, सिचुएशन आएगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन सिचुएशंस और परिस्थितियों में अपने आप को चैलेंजिंग महसूस करना, परेशान महसूस करना, ये हमेशा आपको आगे गिराए। मैं आपको बताता हूँ 1998 की बात, जब मैं अपना फाइनल ईयर प्रोफेशनल दे रहा था, सेंटअप्स दे रहा था, प्रिपरेटरी एग्जाम। अच्छा स्टूडेंट था, नोट्स की पूरी गड्डी होती थी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ता था। तो सर्जरी का प्रिपरेटरी एग्जाम दोस्तों मैं एग्जाम में देकर बाहर आया। 12 दिसंबर का दिन था, अभी भी मुझे ध्यान है। और जैसे ही देकर बाहर आया, तो बैग उठाया और घर जाने लगा। पर देखा बैग बहुत हल्का था। फटाफट बैग को खोल के देखा, तो आपको जानकर हैरान होंगी, मेरी किताब, मेरे सारे नोट्स जो थे वो वहां से बैग से गायब, कंप्लीट। मेरी सारी मेहनत 1.5 साल की, वो सब गायब था। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी। मैं इधर-उधर भागता रहा, लोगों के पास गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बताया भी नहीं कुछ। मैं परेशान होकर मम्मी-डैडी के पास सीधे हॉस्पिटल गया, घर जाते हुए। और अंदर गया तो मम्मी ने पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ? मैंने कहा एग्ज़ाम को तो छोड़िए माने गोली, लेकिन मेरी नोट्स सारे गायब हो गए।
ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मम्मी डैडी कहेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये किया, वो किया, हम बात करते हैं, ये करते हैं। हम मुस्कुराने लगे। उन्होंने मेरे कंधे पे प्यार से हाथ रखा और पता है क्या बोला? बोला, कोई बात नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी, वो ले गया। आप घर जाके सो जाओ, आपको शाम को नई किताब दे देंगे, आप उससे 1 हफ्ते में पढ़ लेना, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अपने थॉट प्रोसेस को इमीडिएटली चेंज कर दिया। नेगेटिव क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समाप्त कर दिया और एकदम पॉजिटिव और पावरफुल तरीके से शाम को उठा, नई किताब थी, उसको 1 डेढ़ हफ्ते तक पढ़ने के लिए मैंने चालू किया। दिन और रात उस पर मेहनत की, ढंग से मेहनत की। अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ता रहा, आपको जानकर हैरानी होगी। उस सर्जरी के सब्जेक्ट के अंदर पिछले 30 साल में पहली बार किसी स्टूडेंट की डिस्टिंक्शन आई एमबीबीएस के अंदर। कभी आज तक कभी किसी की नहीं आई थी एंड आई अचीव्ड दैट। क्यों? या तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं रोता रहता, अब तो पता नहीं मेरे कम नंबर भी आएँगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरी तो किताब गुम गई है। लेकिन मैंने अपनी ओवरथिंकिंग को समाप्त कर दिया। इस मेनेस को समाप्त कर दिया। दैट इज़ व्हाई हम अपनी इमेजिनेशन में दोस्तों ज़्यादा सफ़र करते हैं। अपनी इमेजिनेशन को कभी भी नेगेटिव मत लाओ। देखो इस पिक्चर को देखो कितनी सुंदर है। आपका मन इस प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। अगर मन में नेगेटिव प्रोजेक्शन चलता रहेगा, थॉट्स चलते रहेंगे, वो बाहर लंबा बड़ा प्रोजेक्ट होता रहेगा और आप नेगेटिव लाइफ क्रिएट कर लोगे। आज आपके ही दोस्त कभी-कभी परेशान हो जाते हैं। आपके ही दोस्त कभी-कभी दुखी हो जाते हैं, चैलेंजिंग फेस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आपको उन्हें सपोर्टिंग हैंड देना है। दोस्तों मन प्रोजेक्टर की तरह है। अगर पॉजिटिव थॉट्स लाओगे तो पॉजिटिव थॉट्स को मैग्नीफाई करेगा और अगर नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो नेगेटिव थॉट्स को मैग्नीफाई करके आपकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा। इसलिए बहुत, बहुत, बहुत आवश्यक है पॉजिटिव और पावरफुल खुशनुमा ज़िंदगी को बनाना। इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। इसलिए कभी भी ओवरथिंकिंग मत करना। क्या हुआ? कैसे हुआ? उसने क्या किया? जितना नेगेटिव बातों को हम अपने मन में रख के प्रोसेस करेंगे, आपकी पढ़ाई, आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, कंसंट्रेशन समाप्त होती जाएगी और आप अपनी जर्नी को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। इसलिए रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग, मन के प्रोजेक्टर को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दो ताकि उनको पावरफुल तरीके से प्रोजेक्ट करे। आई एम पावरफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, मे द बेस्ट कम टू मी। रोज कह दो, परमात्मा से कह दो, नेचर से कह दो, द बेस्ट इज कमिंग टू मी। मेरे लिए जो भी कुछ होगा वो परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा, बिल्कुल यूनिक होगा। देखो ना, मैंने भी जो शुरू में चाहा मुझे नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ मुझे मिली, उस चैलेंज को मैंने अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करके अपने लिए सक्सेस को क्रिएट कर लिया। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचो कि हर व्यक्ति उसी सिचुएशन में वही चीज़ को प्राप्त करेगा, नहीं। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको ऑटोमैटिकली प्राप्त हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई हम सब लोग एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। हमारी कैपेसिटीज़ यूनिक हैं, हम सबकी परफॉर्मेंसेज़ यूनिक हैं और लाइफ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना ही हमारी अचीवमेंट नहीं होती। लाइफ में अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना, ये हमारी यूनिकनेस, इसमें हमारी यूनिकनेस यूनिकनेस दोस्तों लाई करती है। मेरा चौथा मैसेज दोस्तों, कभी भी अपनी लाइफ में अपने लाइफ के माइंड को, थॉट प्रोसेसेस को दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होने देना। इन 4 बातों से कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करना। एक तो आपका पास्ट, पहले क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इट डज़न्ट मैटर। अब मैं कहता हूँ आप क्लास में लास्ट स्टूडेंट हो, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। मैं कहता हूँ अगर आपको टीचर्स ने डाँटा, आपकी 10 बारी फेलियर का सामना करना पड़ा, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग इनटू अ पावरफुल न्यू डायरेक्शन। यही हमारी लाइफ की ब्यूटी है। जिस तरफ मेरी जिंदगी जाएगी, जिस तरफ मेरी विचारधारा जाएगी, वही मेरी सुंदर जिंदगी का निर्माण करेगा। इसलिए कभी भी पास से अपनी लाइफ को गवर्न मत होने दो। लोगों की ओपिनियन और बिलीफ, लोग तो कुछ कहेंगे, ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कभी टीचर्स बोल देंगे, कभी फ्रेंड्स बोल देंगे, कभी घर वाले बोल देंगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम बिलीव ही मत करो। मैं अपने मन में कभी भी सक्सेस के लिए सुनता ही नहीं था। मैं केवल अपने मन की सुनता था, आई हैव टू अचीव दिस। और जब मैं अपने मन में किसी चीज को ठानता था, उसके बाद बाहर एक साइन लगा लेता था और वो साइन आप भी आप अपने मन में लगा लो, डू नॉट डिस्टर्ब। सिंपल।
डू नॉट डिस्टर्ब। जब ये डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा लिया, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती चली जाएगी। देखो ना, हमारा पास्ट हमारा पास्ट कई बारी हमको हॉन्ट करता है। पता नहीं पहले तो मैं नहीं कर पाया, अब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लगता तो नहीं है, डिफिकल्ट तो लगता है। भगवान कहता है कि जब तुमने सोच लिया, नवजीवन का निर्माण कर लिया, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्रिएटिंग दैट ब्यूटीफुल लाइफ। मैं आपको बड़ी सुंदर एग्जांपल दिखाता हूँ। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, तो उस समय मेरा वेट जानते हो क्या होता था? मेरा वेट होता था 96 केजी, 96 केजी। उस समय मुझे डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब कुछ था। देखो मेरी फोटो देखो, अमेरिका की फोटो देखो। ये अमेरिका डिज्नीलैंड के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखो मेरी पिक्चर। 96 केजीज मेरा वेट होता था। मोटी-सी तोंद होती थी, थायरॉइड की बीमारी थी, डायबिटीज की बीमारी थी, हाइपरटेंशन भी था, लिवर में फैटी लिवर भी था। और जब मैं वापस आया ना, जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो मेरे घर में किसी ने मुझे बोल दिया। मेरे अंकल हैं, उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला कि, "मोहित बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए।" ऐसे बोल दिया। कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, हार्ट के डॉक्टर, तो हार्ट के डॉक्टर जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। ये बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा पुराना जो था कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों रोज़ मैं पढ़ाई भी करता था। जैसे मैं अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था दिनों-रात, लेकिन मैंने अपने लाइफ़ को मॉडिफ़ाई करना आरंभ। रोज़ 1.5 घंटा डाइट को मॉडिफ़ाई कर दिया, उल्टी-सीधी डाइट्स को बंद कर दिया और रोज़ एक्सरसाइज़ करना आरंभ किया। 1 सवा घंटा रोज़ एक्सरसाइज़ करता था। 9 फरवरी को जब एग्ज़ाम था, 16 जुलाई से मैंने ये आरंभ किया। आपको जानकर हैरानी होगी, बाय 9 फरवरी जब मैं कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस देने जा रहा था, मैंने 23 किलो वज़न अपना कम कर लिया। 23 किलो वज़न। मेरी डायबिटीज़ भी गायब, मेरी हाइपरटेंशन भी गायब, मेरी लिवर फैटी लिवर भी गायब, थायरॉइड भी गायब और सब कुछ इन प्लेस फ़ॉल कर गया। लेकिन इस यही केवल नहीं था। इसके साथ-साथ मज़े की बात ये है आज ऑलमोस्ट राइट ऑन द वे आज ऑलमोस्ट राइट ऑन द वे 22 इयर्स डाउन द लेन देखो आज भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ सब कुछ डिसअपीयर कर गया। लेकिन ब्यूटी ये नहीं थी। ब्यूटी ये थी कि आज 22 इयर्स डाउन द लेन भी मैं अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन करता हूँ। जैसे देखो मैं अभी आपके पास मिलने आया ना बात करने के लिए, उससे पहले मॉर्निंग के अंदर 3:15 बजे उठकर मैंने अपना मेडिटेशन का कार्य कंप्लीट किया। 5 बजे तक वो करने के बाद मैंने अपने स्पिरिचुअल वर्जन्स को पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना 1.5 घंटे पूरा वर्कआउट किया, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए। उसके बाद मैं अब आपके पास आया। अब मैं आपसे मिल के 9:15 बजे निकल जाऊँगा। 16 केस ऑपरेट करने हैं, शाम को एक और प्रोग्राम है। लेकिन जीवन के अंदर बैलेंस को क्रिएट कीजिए। बैलेंस इज़ की जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपकी पास्ट से कभी भी अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस मत होने देना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले साल में क्या परफ़ॉर्मेंस रही, अभी क्या रहा, किसने क्या कहा, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। केवल मुझे अपनी लाइफ को पॉज़िटिव और पावरफुल दूसरा, अगर सक्सेस में मुझे कमी आती है, प्रॉब्लम आता है, उसका कारण है लोगों का बिहेवियर वो मुझे इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। मैं अलाउ कर देता हूँ लोगों की नेगेटिविटीज़, लोगों का बिहेवियर मेरे मन को डिस्टर्ब करे, कभी भी नहीं। अगर सोचो गाड़ी आपकी है, मर्सिडीज़ गाड़ी आपकी है, तो उस गाड़ी को चलाने का सबसे अच्छा काम आप करेंगे या कोई और करेगा? आप ही के पास रिमोट कंट्रोल होना चाहिए ना। इसी प्रकार अपने जीवन की खुशी, अपने जीवन के सक्सेस का रिमोट कंट्रोल कभी भी किसी को मत देना, कभी भी मत देना। आज क्या होता है? आज सक्सेस हमारी लाइफ में इसलिए चली जाती है क्योंकि हम नेगेटिव बातों को अपने मन में रखते जाते हैं। एक बारी पता है क्या हुआ? बड़ी मज़े की बात सुनाता हूँ कि एक बारी 2 भिक्षु थे। तो बौद्ध भिक्षु कहीं जा रहे थे तो नदी पार करने का टाइम आया। नदी पार करते-करते उन्होंने देखा, बीच में देखा कि एक कन्या फँसी हुई है। तो उनमें से एक भिक्षु को दया आई, उसने उसको उठाकर अपने सर पर नदी के पार रख दिया। तो दूसरे भिक्षु को बहुत गुस्सा आया कि हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने मित्र से बात करना छोड़ दिया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथा दिन आने ही वाला था, उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी तपस्या भी करनी छोड़ दी, परेशान होता रहा।
जब इतना परेशान हो गया, इतना नेगेटिव हो गया, उसका मन बिल्कुल दुखी और अशांत हो गया। 5वें दिन वो अपने मित्र के पास गया और कहा कि मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा मैंने क्या गलत काम किया? उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को उठा के अपने सर पर रखा था और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उसका मित्र पता है क्या बोला? ध्यान से सुनो, उसका मित्र बोला, "मित्र मैंने तो आज से 5 दिन पहले केवल उसे 5 मिनट के लिए उठाया था। तुम तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर घूम रहे हो, हाँ? तो ऐसा नहीं करना चाहिए।" इसी प्रकार आप देखो हमारे जीवन में भी लोग कभी-कभी हमारे लिए बुरा बोलेंगे, कभी-कभी नेगेटिव बोलेंगे, कभी-कभी कुछ नेगेटिव गिफ्ट देंगे, लेकिन उनकी बातों को अपने मन में रख लेना। यही होता है ना आजकल हम हर चीज़ को अपने मन में रख लेते हैं। मुझसे नहीं होगा, किसी ने बोल दिया नहीं कर पाएँगे, मेरा मन ऑफ हो गया, बस मैं नहीं कर पाऊँगा। तुमसे नहीं होगा, हमने स्वीकार कर लिया। किसी ने कुछ बुरा बोला, हम उसको फ़ील कर लिया। इसको हमेशा हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं फीलिंग फ्लू होता है। एक फ्लू वो होता है, एक होता है फीलिंग फ्लू। आज ऐसे समय पर अपने मन में देखो गुस्सा आना, इरिटेशन का आना, मन में ईर्ष्या और घृणा का आना, कंपटीशन और क्रिटिसिज्म का आना, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशंस का, ये सारी बातें बच्चों हमारे मन को नेगेटिव करती हैं और सक्सेस को हमसे दूर ले जाती हैं। देखो ना, ऐसा क्या मन को हम ऐसे नेगेटिव क्यों बनाएँ? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एंगर जो एक नेगेटिव इमोशन है, उसको हम लव से रिप्लेस करें। आप देखो ना मन में किसको रखना चाहोगे? जब आपका मूड अच्छा है, जब आपका मन अच्छा है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, सक्सेस भी ऑटोमैटिकली आएगी। लेकिन जब आपका मन नेगेटिव है, मन में ईर्ष्या और घृणा है, मन में कंप्लेन है, क्रिटिसिज्म है, नेगेटिविटीज़ हैं, ऐसे समय पर सक्सेस भी आपको इल्यूड करेगी, वो आपसे दूर जाएगी। इसलिए अपने मन को पॉजिटिविटी से एप्रिशिएट योरसेल्फ, बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, बी लविंग, बी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे लिए गुण है। दोस्तों हमारे जीवन में भी चैलेंजेस आते थे। मैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में जब होता था, तो मैं नोट्स बनाता था। आप सोचो हम क्या करते थे? वी नेवर यूज्ड टू टेक द थिंग विद अस। उन नोट्स को कार्बन कॉपी, उस समय ऐसी फोटोकॉपी नहीं होती थी, लेकिन अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, मेरे अच्छे फ्रेंड होते थे, उनके लिए मैं क्या करता था, अच्छे नोट्स बनाते हुए नीचे कार्बन पेपर रखकर उनके लिए मैं नोट्स बनाता था, ताकि जो नोट्स मैं अपने लिए बना रहा हूँ, वो उनको भी मिले। जब आप किसी को उठाते हो, तो उस उठाने के लिए आप स्वयं भी ऊपर उठ जाते हो। दोस्तों जब किसी को भी मदद करोगे, जब आप छोटे से हो, ये परिवार है आपका, ये परिवार है। हमारी लाइफ के अंदर केवल एक ही चीज़ अचीव करने से नहीं चलेगा, लेकिन हमारी लाइफ में हम सब गुलदस्ते के अंदर अलग-अलग प्रकार के फूल हैं। और एक गुलदस्ते की जो शोभा होती है वो एक फूल से नहीं होती, वो अनेकों प्रकार के गुलदस्ते फूलों से होती है। कोई गुलाब का है, कोई चंपा का है, कोई डेज़ी का फूल है। आप सबके अंदर एक यूनिक ब्यूटी, एक यूनिक एसेंस है। उस एसेंस को कभी भी समाप्त मत हो। ये सदा ध्यान रखना। जब आपकी महक, खुशबू लगातार रहेगी दोस्तों, तो आपका जीवन भी आगे चलता रहेगा। मेरा मानना हमेशा ये है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, तो कपड़ों पर इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना, परफ्यूम की खुशबू आना आम बात है। मज़ा तब है जब आपकी शख्सियत, आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी भी ग्लोइंग होनी चाहिए और ऐसी ग्लोइंग पर्सनैलिटी सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज से 6th मंत्रा जो मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरा मन एक एंगर फ्री माइंड है। आई एम अ नो नेगेटिव माइंड, लिख लो अपने आगे, अपने रूम के आगे लिख लो, दिस इज अ नो नेगेटिव रूम। आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, हैप्पीनेस इज माई इन्नेट प्रॉपर्टी, इज माई इन्नेट गुण। ये चीज़ें मेरी नेचुरल है, जो व्यक्ति खुश है वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, डीएवी स्कूल को लेबल कर दो, दिस इज़ अ कॉलेज, दिस इज़ अ स्कूल ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, ऑफ सक्सेसफुल चिल्ड्रन। हर कोई किसी से मिल रहा है, वो खुशी से मिल रहा है, वाइब्रेशंस एक-दूसरे को दे रहा है। दोस्तों, आज नहीं तो कल सक्सेस तो आनी ही है। मेरी डेस्टिनी मुझे सक्सेस की तरफ लेकर ही जाएगी, उससे कोई भी मुझे छीन नहीं सकता। लेकिन मुझे उसको बहुत पावरफुल तरीके से अचीव करते हुए यात्रा को पावरफुल बनाना है। मेरे जीवन में स्ट्रेस क्यों आता है? क्योंकि मैं टेंशन क्रिएट करने लग जाता हूँ, फ्यूचर के बारे में चिंता करने लग जाता हूँ। नहीं, अपने रिलेशंस को भी सुंदर और पावरफुल बनाओ। और मेरा लास्ट मैसेज दोस्तों जो आप सबके लिए है, वो है कीप थिंग्स सिंपल। लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो।
दोस्तों, आज लाइफ को ही हमने सिंपल लाइफ को बहुत पावरफुल तरीके से कॉम्प्लिकेट कर दिया। इट्स नेवर वर्थ इट, नेवर वर्थ इट। एक बारी की बात मैं आपको सुनाता हूँ। ये सिकंदर के टाइम की कहानी है। और सिकंदर जब पूरे विश्व को जीत कर, देश को जीत कर जा रहा था, तो भारतवर्ष में जब वो आया, तो उसने कहा मैं भारत से भी कोई नायाब चीज़ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक समथिंग यूनिक फ्रॉम इंडिया। उस समय चाणक्य का टाइम था और उन्होंने कहा ठीक है। और उसके सेनापति सेल्यूकस ने बोला कि सिकंदर, यहाँ के महात्मा बड़े महान होते हैं, यहाँ के महात्मा को पकड़ के ले चलो। तो उसने कहा ठीक है। तो महात्मा को पकड़ कर लाया गया और सिकंदर ने उससे कहा, ध्यान से सुनो क्या बोला, उससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना है। तो महात्मा हँसने लगा, उसने कहा कि भई मैं आपके साथ आपके देश नहीं जाऊँगा। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और उसके गले पर रखी और उससे बोला, आपको मेरे साथ देश चलना ही है, मैं विश्व विजेता हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आपके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा। तो महात्मा हँसने लगा और उससे बोला कि सिकंदर, मैं आपके साथ आपके देश बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और अभी आपने 2 बातें बोली है, दोनों बातें 100% बिल्कुल झूठ बोली। सिकंदर हैरान, आज तक किसी ने उसे ऐसा बोला ही नहीं था। जिसने विश्व को जीता था, सक्सेस को अचीव किया था, उसके मायने उसके आगे क्या रखते थे, लेकिन उसको एक शौक की तरह ये बात आई। उसने अपनी तलवार नीचे करी और महात्मा से पूछा, ज़रा बताइए क्या बातें मैंने गलत बोली? तो महात्मा ने कहा कि आपने कहा आप मेरे टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, आप ठीक बोलते हो। आप मेरे शरीर के, बॉडी के तो टुकड़े-टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मेरी मन, मेरी आत्मा के, मेरी सोच के टुकड़े नहीं कर पाओगे। मैं जब भी जन्म लूँगा, अपनी इस पॉजिटिव और सकारात्मक सोच से लूँगा और अपना और अनेकों-अनेक लोगों का कल्याण करूँगा, उनको पावरफुल एनर्जी दूँगा। सिकंदर हैरान हुआ। उसने कहा ये तो अद्भुत बात है। उसने अपनी तलवार नीचे करी और कहा, महात्मा जी दूसरी बात मैंने क्या गलत बोली? तो वो हँसने लगा, मुस्कुराने लगा। उसने कहा, अभी आपने कहा विश्व विजेता हूँ, लेकिन मैं आपको सच में बताऊँ तो आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम। सिकंदर ने कहा, ऐसा क्यों? तो महात्मा ने कहा कि सिकंदर, जिस क्रोध को मैंने अपने वश में किया है, 5 मिनट पहले उसी क्रोध ने आपको अपने वश में कर रखा। तो आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम। सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार नीचे करी और नीचे करके बोला कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र के बाहर मेरा हाथ खाली रखना, ताकि लोगों को पता लगे कि जिस दुनिया ने विश्व और देश को जीता था, जब वो गया था तो वो खाली हाथ गया था, केवल अपने संस्कार लेकर गया था। तो बच्चों, सक्सेस बड़ी एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जिंदगी में बढ़ते बढ़ते जो हमारे साथ सदा रहती हैं, वो हमारे कर्म रहते हैं, हमारी सोच रहती है, हमारी फीलिंग्स रहती है। कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपनी लाइफ को सदा पावरफुल और पॉजिटिव बना, कैसी भी हो जाए। आप सब एक प्रकार से शाइनिंग डायमंड्स हो, लेकिन उस शाइनिंग डायमंड्स की सोच और जो चमक है वो कम कब हो जाती है, जब हमारी सोच जो है वो नेगेटिव और नकारात्मक हो जाती है। हमारी लाइफ में अल्टीमेटली यही मैटर करेगा कि हमने कितने लोगों की जीवन में मदद की, कितनों को कितना प्यार दिया, कितना सुकून दिया, कितने लोगों को जीवन के अंदर कितना सुख और शांति दोस्तों प्रदान किया। तो दोस्तों, मैंने अपनी भी जीवन की यात्रा जब जी, तो पिछले 41 ईयर से मैंने अपने जीवन में राजयोगा मेडिटेशन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया। मेडिटेशन जब भी मैंने अपने जीवन में लाया, तो वो मेरे लिए एक चार्जिंग का काम करता, मेरे लिए एक अट्रैक्शन का काम करता था, मेरे को रिजुविनेट करता। मैं जब भी पढ़ने बैठता था, मैं केवल 2 मिनट, 5 मिनट साइलेंस में बैठता था और फिर मैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था। इसका एडवांटेज मुझे क्या होता था, मेरे थॉट्स बिल्कुल अलाइन हो जाते थे, सिंक्रोनाइज हो जाते थे और पावरफुल तरीके से मैं सक्सेस को अचीव कर पाता था। सिचुएशंस जो भी आती थी, नेगेटिव आती थी, लेकिन मेडिटेटिव पावर के द्वारा उन नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज करना, अपने आउटलुक को चेंज करना, ये मेडिटेशन की शक्ति ने मुझे दिया। कभी-कभी मेरे सामने इतने चैलेंजेस आए, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आईं, लेकिन वो आते हुए भी मैंने उनके ऊपर मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करी। मेडिटेशन का अर्थ केवल ये है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव, परमात्मिक याद और उनके संकल्पों से चार्ज करना। कुछ भी नहीं है। देखो, जो मन लगातार सोच रहा है, लगातार चल रहा है, उसके संकल्पों की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन में हम संकल्पों की गति को कम करते हैं। हम संकल्पों की गति को कम करते-करते हम संकल्पों की नंबर को भी कम करते हैं, और जब गति कम है, नंबर कम है, तो क्वालिटी ऑटोमैटिकली बढ़ती चली जाती है। ये है मेडिटेशन की पावर। जब हम उसके अंदर परमात्मा की प्यूरिटी की संकल्प, परमात्मा का ज्ञान, उनकी शक्ति, खुशी, प्यार, आनंद और शांति, ये हमारा इनेट प्रोसेसर है। जैसे आपके पास मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल क्या करेगा? मोबाइल बजेगा, तो मोबाइल ऑटोमैटिकली चार्ज होकर एक बेसिक फ़ोल्डर्स के द्वारा चलता है। यानी
बूटिंग सिस्टम होता है। ये जो 7 गुण हैं, ये सातों गुण हमारे मन के, हमारी आत्मा का बूटिंग सिस्टम है। और यदि हमारा मन शांत है, प्यार से परिपूर्ण है, खुशी से परिपूर्ण है, प्योर संकल्प है, तो ऐसे संकल्पों की शक्ति क्या होगी? वो पावरफुल, वो बहुत-बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होगी और सक्सेस सहज रूप से ऑटोमैटिकली मेरे पास आती चली जाएगी। देखो, ऐसे ही 2003 में मैं आपको दिखाता हूँ 20th मार्च, जब मैं एक दिन ऑपरेट करके आया था। 16-17 केस मैंने एक दिन में ऑपरेट किए थे। 48 घंटे बाद मैं जब घर पे आ रहा था, तो अल्टीमेटली मैं बहुत थका हुआ था। 5 साढ़े 5 बजे आया, मदर ने खाना दिया, लेकिन मेरा खाना खाने का मन नहीं करा। करीब रात हो गई, उन्होंने मुझे आइसक्रीम दी और हाथ में लेते ही आइसक्रीम मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया 20 मार्च को। मेरे को मैसिव दोस्तों सीज़र्स होने लगे। मैं बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे हॉस्पिटल उठाकर ले जाया गया और अगले दिन जब मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए तो देखो, ब्रेन के अंदर मेरा इतना बड़ा लेशन था, इतना बड़ा मास था। आज भी मेरे राइट साइड पे ब्रेन नहीं है, मेरी हियरिंग अभी भी नहीं है। मेरे को केवल 50% हियरिंग मेरी रह गई है। आप देखो इतना डिस्ट्रॉयड था। ये मेरे लिए एक सडन एक शॉक की तरह आया था। 19 ड्रग उस समय पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल थे, उनमें से 18 ड्रग मेरे ऊपर काम नहीं करते थे। कैन यू इमेजिन दैट? और एक ड्रग मेरे ऊपर काम करता था और वो टॉक्सिक इंजेक्शन था। हिप्स पर इंजेक्शन रोज़ लगते थे, फिर हाथों पर इंजेक्शन रोज़ लगते थे। 16 टैबलेट्स मैं रोज़ खाता था, 8 सवेरे और 8 शाम को खाता था। मुझे दर्द होता था लेकिन कभी भी मैंने दुःख की महसूसता नहीं की। मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई भी पढ़ता रहा। अल्टीमेटली मेरी सर्जरी 20 जून 2005 को हुई और ब्रेन से इस लेज़न को निकाला गया। ये मेरा ही पिक्चर है। ब्रेन से इस लेज़न को निकाला गया। देखो जून 15 2005 का ये स्कैन है और 20 जून को सर्जरी हुई। जब ब्रेन से निकाला गया मैंने सोचा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप देखो मात्र 6 महीने बाद जब मैं फ़ॉलो अप कर रहा था जनवरी 2006 में, पुराना तो ऑपरेट हो चुका था, मेरे ब्रेन में एक और लेज़न आ गया। चैलेंजेस देखो, हम कितनी छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं लेकिन इमेजिन करो अ पर्सन फाइटिंग फॉर हिज़ लाइफ और मेरे ब्रेन में एक और लेज़न आ गया, ना ये ऑपरेट हो सकता था, ना इसका कोई और सॉल्यूशन उस वक़्त हमारे पास था। ऐसे समय पर मैं क्या करता? ऐसे समय पर मैंने सोचा कि लोग कहते थे कि ना इसकी सर्जरी हो सकती है, दवाइयाँ ऑप्टिमल चल रही थी। उस समय मैंने राजयोगा मेडिटेशन का प्रयोग अपने ऊपर करना आरंभ किया। हमारे यहाँ दादी गुलज़ार होती थी, सीनियर उनके पास में गया, उनसे मैंने डिस्कशन किया, उन्होंने कहा मोहित फ़ोकस्ड मेडिटेशन अपने आप की हीलिंग के लिए करो। और आप देखो, मैंने जनवरी 2006 से रोज़ 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को वाइब्रेशंस देने आरंभ किए कि मेरा ब्रेन बिल्कुल हेल्दी है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, माय ब्रेन इज़ परफेक्ट, आई एम एब्सोल्यूटली क्लीन। मेरे ब्रेन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट न्यूरॉन्स हैं और डिज़ीज़ मेरे ब्रेन में नहीं है। दवाइयाँ मैं वो खाता। 1 साल मैंने लगातार ये अभ्यास किया और देखो 1 साल बाद क्या हुआ। अप्रैल 2007 में जब ब्रेन के स्कैन मेरे रिपीट किए गए, मेरे ब्रेन से ये कंप्लीट लेज़न डिसअपीयर कर गया। कंप्लीट डिसअपीयर कर गया। विदाउट सर्जरी कंप्लीट डिसअपीयर कर गया। ये मेडिटेशन की पावर थी। राजयोगा मेडिटेशन की। असंभव को भी संभव करना, असाध्य को भी साध्य करना, ये मेडिटेशन की शक्ति है जिसके द्वारा हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। अपनी सोच के द्वारा हताश हो जाना, परेशान हो जाना, पता नहीं क्या होगा, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी केवल एक सुंदर यात्रा है और हर पल को खुशी से, उत्साह से जीना ये हमारा कर्तव्य है। दिस इज़ अवर बेसिक नेचर, उसी प्रकार से हमको चलना है। अगर हमारी लाइफ में सुंदरता रहती है, हमारी लाइफ में समन्वयता रहती है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव संकल्प रहते हैं, सक्सेस आपके पास आनी ही है। इट हैज़ टू कम टू यू, इट हैज़ टू कम टू यू। केवल ये संकल्पों का खेल है। तो आज इस सुंदर परिवार में हम सब लोग आपस में प्रण करते हैं कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी लाइफ को सुंदर और सक्सेसफुल बनाएँगे, हैप्पी बनाएँगे। येस और नो बताओ? हुँ? सभी लोग हाथ उठा के बताओ, करेंगे या नहीं? कभी भी नहीं बनाना। नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएँगे, नहीं। इट इज़ अ स्ट्रेस फ्री इंस्टीट्यूशन। नो नेगेटिव इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर सब बच्चे ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हैं, सक्सेस आनी ही आनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस ना आए। ये सहज और स्वतः रूप से आनी है, हमको केवल अपने संकल्पों को पॉजिटिव और पावरफुल बनाना है। इसलिए नो स्ट्रेस, नो टेंशन, ओनली हैप्पीनेस, ओनली रिलैक्सेशन, ओनली जॉय इन आवर लाइफ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लिव फॉर। तो चलो, कुछ पल के लिए हम लोग साइलेंस में बैठते हैं। चैलेंजेस आएगा, लेकिन 1440 मिनट रोज आपको मिलते हैं। मॉर्निंग में 10 मिनट जब आप उठो,
व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग नहीं करनी, मेडिटेटिव गुड मॉर्निंग करनी है और रात को सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठना है। तो अब मैं आपको कुछ थॉट्स दूंगा और इन थॉट्स के साथ बिल्कुल अलर्ट होकर सब लोग बैठो, आंखें खुली हुई हो और बिल्कुल चेहरा मुस्कुराता हुआ संकल्प दो, इस शरीर के अंदर मैं एक पावरफुल लवली एंजल हूं। मेरा एक एक संकल्प, एक एक थॉट बहुत प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल है। परमात्मा की प्योर और एनर्जी वाइब्रेशंस मेरे थॉट्स को एम्पावर कर रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। सक्सेस मेरा बर्थ राइट है। मेरे शक्तिशाली संकल्प सहज रूप से सक्सेस को मेरे पास लेकर आते हैं। मेरे संबंध खुशी और आनंद से परिपूर्ण है। मेरा हर पल बहुत सुखी और शांत है। फील करो, शरीर के अंदर इस पावरफुल एनर्जी को फील करो। संकल्पों के द्वारा मैं अपने उज्जवल फ्यूचर को क्रिएट कर रहा हूं। परमात्मा की पावरफुल एनर्जी एक वंडरफुल ऑरा की तरह मुझे सराउंड करती है। सक्सेस मेरा बर्थ राइट है। खुशी मेरा अस्तित्व है। शांति मेरा नेचर है। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों, आज के बाद हम सब नो नेगेटिव। हाँ, वंडरफुल। केवल हमको आगे बढ़ना है, खुशी से बढ़ना है। सक्सेस तो आनी ही है, होना ही है। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होना है, लेकिन इस लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुशी से आगे बढ़ते जाना है। तैयार हैं सभी लोग? यस और नो? तैयार हैं? बताओ, अब कोई चैलेंज बचा या नहीं? देखो सब कितना इजी है। लाइफ को कॉम्प्लिकेट हम केवल अपने थॉट्स के द्वारा करते हैं। सब कुछ हमें वंडरफुल तरीके से चलाना है। ओके, चलो, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, Dr. Mohi. Thank you so much for this wonderful session. This session was not at all some kind of motivation through lecture, but this was the motivational session with live examples of your own life. Really has connected children very, very successfully, and we are highly privileged to have you here, Dr. Mohit. You are great inspiration for our children from today onwards. We look forward to many such opportunities, Dr. Mohit Gupta, so that we can invite you time and again. Now I would like to request Sister Kriti if she would like to speak or address. थैंक यू वेरी मच मोहित भाई, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से सभी बच्चों के लिए टाइम निकाला,
these are all the seeds yet to grow into a big tree, and I'm definitely sure that आपके द्वारा दिया गया एक word will provide them with a very firm foundation. Children has taken your mantras, and I think they have noted it down, and they will be using it each and every day. We are trying to bring meditators in their life so that they can, and till now you have delivered, you have exceeded the expectation by delivering all your experiences to the students. Thank you very much. Thank you very much. And we will continue being in touch with you. Would that be Thank okay? you. In Yeah, future sure, also, sure. if there is Anytime requirement, आपको I जब will भी जरूरत definitely हो, reach out. आप नंबर रखिए अपने पास, और जब भी हो मैसेज जी। करिए, जरूर कभी ना कभी आपको रिप्लाई डायरेक्टली आएगा. लिसन, एंजॉय एंड एक दूसरे को एम्पावर करते जाइए, है ना. आप सब एंजल्स हो, आप सब बहुत पावरफुल सोल्स हो, और सक्सेस आपके पास सदा आएगी, है ना. थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा. वर्चुअल मिले, कभी लाइव भी जरूर मिलेंगे. थैंक यू एंड ओम शांति. थैंक यू. Thank you Thank from you. the Thank staff, you. principal and students of DAV Public School, Kota. Dr. Poonam Singh, our principal. She's highly indebted for this particular session which you have given over here. Thank you so much. Have a nice and a great day and great life, sir. Thank you. Thank you. Signing off for today.